धड़कन से तेरी मैं धड़कन चुरा लूं, शबनम के होंठों से बूंदें चुरा लूं, अगर ना हो तुमको कोई एतराज, तेरे जान से चेहरे को आईना बना लूं। ना मुस्कुराया करो, लग न जाए किसी की नजर, मैं तेरी अदाओं को आंखों में छुपा लूं। दिन रात तुम ही रहते हो सोचों में, दिन रात तुम ही रहते हो सोचों में मेरी, हर सांस मेरी ये कहती है तुमको मैं तुमसे चुरा लूं। ATV शालीमार नेटवर्क FM 94.6 लाहौर स्टूडियो से मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ आज की रात, वो रात जब खामोशी का आलम हो, लेकिन मन मचले कुछ सुनने को, कुछ बोलने को, कोई ऐसी आवाज जो सुरों के ताल मेल को मिला दे, ऐसी बात जो दुखी दिलों को मुस्कुरा दे, ऐसा राज जो हमें कोई बतला दे, ऐसी मधुर गुफ्तगू जो आवाज के साथ साथ संगत भी सुना दे। ATV चैनल पे आप सुन रहे हैं शालीमार रेडियो 94.6 लाहौर स्टूडियो से। मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ आज की रात लिए आया हूं वो बातें जो शायद ज़बान पे आ ना सकें, वो राज जो छुपे रहते हैं मन के तारों में, और मैं बतलाता हूं मन की दुनिया क्या है। आप मुझे सुन रहे हैं, और अगर आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होना चाहेंगे तो मैं आपको दावत देता हूं, आए हमारी बज़्म गीती के मकीनों में शामिल हो जाएं, हमारी आवाज के साथ अपने भी सुर मिलाएं, और आप क्या कहते हैं हम सब जानना चाहते हैं, लेकिन हमारे मौजू पे रहना होगा आपको। हमारे मौजू से प्लीज हटना नहीं, जो आज का मौजू है उसी पर करेंगे आप और मैं बात। बज़्म गीती के मकीनों और मुझे सुनने वालों और ATV चैनल के रेडियो नेटवर्क शालीमार 94.6 लाहौर स्टूडियो को जानने वाले, आप मुझे कॉल करेंगे लाहौर से बाहर से जहां जहां तक ये आवाज पहुंच रही है। आप कॉल करेंगे 0423 717 6882।
کیا اسے یاد میری کبھی آتی ہے؟ وہ سہمے وہ وصال کا موسم، وہ سمے جب کسی کی دنیا میں اس کے آرس کے دیپ جلتے تھے، وہ سمے جب کسی کے پہلو میں اس کے قریب گلاب کھلتے تھے، وہ سمے جب کسی کی یادوں میں رات بیتتی، اس کا سندر انداز، جب وہ بولتا تھا میں سنتا تھا، وہ ہلتا تھا میں لپکتا تھا، کیا اسے یاد ہے میری بھی کبھی؟ اس کے دل میں کسی زمانے میں کوئی ازمیر ہوتا تھا، میں جاگتا تھا، ڈھونڈتا تھا، آخر وہی لمحے من کے تار ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا ہوں صدا لیے، ایک محفل کو سجائے۔ بیتی رات میں آپ کا انتظار کیے شالیمار ایف ایم ریڈیو 94.6 پہ میں ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کا رہوں گا منتظر رات 10 بجے سے 12 بجے تک۔ آج ہماری گفتگو ہوگی کامیابی کے ٹکٹ۔ کیا کامیابی کا ٹکٹ آپ کو چاہیے؟ کیا کامیابی کا ٹکٹ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کامیابی جسٹ چانس ہے، لک ہے، مقدر ہے، تقدیر ہے، محنت ہے، یا ہمیں مل سکتی ہے؟ آج کا ہمارا موضوع کامیابی کا ٹکٹ، اس پر گفتگو ہوگی آپ کی اور میری۔ ہم آج اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اس پہ بات کریں گے، اور آپ میں کامیابی کے ٹکٹ پر اپنی رائے دیں گے کہ کیوں منتظر رہتے ہیں لوگ انتظار میں؟ گھر چل کے آئے گا خود ہی ٹکٹ کامیابی کا، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو انتظار میں، شاید کوئی دستک دے گا اور پرواز کروائے گا۔ آج ہمارا یہ موضوع ہے اور اس موضوع پر آپ اور میں گفتگو کریں گے، اور آپ کا ہمارا اس پہ ہماری گفتگو رہے گی، اور اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاوا دیں گے۔ آپ کو ڈائل کرنا ہے شالیمار ریڈیو ایف ایم اسٹوڈیو کا وہ نمبر جس پر میں اس وقت انتظار میں ہوں آپ کے کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ رات 12 تک ہم گفتگو کریں گے اور گفتگو کو بڑھاوا دیں گے، اور بڑھتے بڑھتے ہم خوبصورت پوئٹری بھی کریں گے، وہ پوئٹری جو صرف من کی دنیا کی پوئٹری ہوگی۔ ابھی تو میں نے بات شروع کی اور کال دھڑا دھڑ سٹارٹ ہے۔ سبھی سننے والوں کو جو اس وقت ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں اے ٹی وی چینل کے ریڈیو نیٹ ورک شالیمار 94.6 ایف ایم لاہور اسٹوڈیو سے، میں ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کو ڈائل کرنا ہے 0423 71 76 882۔ ابھی تو گفتگو کا آغاز ہوا ہی ہے کہ لائن سپیڈ سے دھڑا دھڑ دھک 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 شروع ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کامیابی کا ٹکٹ لیے کون سا کالر ہمارے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ محمد ظہیر کاموکی سے بات کر رہا ہوں۔ جی حافظ محمد ظہیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ آپ ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے کالر ہیں۔ جی سنائیں کامیابی کے ٹکٹ پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کامیابی جو ہے وہ ملتی ہے محنت سے،
अगर हम घर बैठे इंतजार करते रहेंगे ना जी फिर कामयाबी हमारे हाथ में नहीं आएगी. वाह गुड. जितनी देर तक हम मेहनत नहीं करेंगे. जी 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 जी. अगर हम किसी के इंतजार में रहेंगे ना तो कोई हमें आकर ये कहेगा कि ये आपकी टिकट है कामयाबी की, जी तो वो कतई कामयाबी नहीं होगी. बिल्कुल ठीक है. हाफिज साहब रेडियो की आवाज बंद कर लीजिए ताकि आपकी आवाज इस वक्त पूरा जमाना जमीन और समा सब सुन रहे हैं आपकी आवाज. रेडियो बंद करके आप बात कीजिए. जी हाफिज साहब. बंद कर दिया है. जी 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 जी. तो कामयाबी जो है वो इंशाल्लाह आपकी मुकद्दर होगी अगर आप मेहनत करेंगे. मेरा तो ये अकीदा है. यानी मुकद्दर के बाद यानी मेहनत से मुकद्दर बनेगा. जी जी बिल्कुल. मुकद्दर खुद आपके दरवाजे पे नहीं आएगा. नहीं आएगा. मुकद्दर को हासिल करने के लिए मेहनत जरूरी है. जी मेहनत जरूरी है. बिल्कुल. हाफिज साहब बहुत शुक्रिया. आप कामों की से गुफ्तगू कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत आपने गुफ्तगू की है. हाफिज साहब हमारे साथ शामिल थे कामों की से और देखें पहला स्टार्ट ही कितना खूबसूरत हुआ कि मेहनत करेंगे तो कामयाबी का टिकट मिलेगा. सक्सेस ऐसे नहीं मिलती. सक्सेस के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ता है. और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहें. चूंकि प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है और अभी तो 10:15 हुए हैं और प्रोग्राम रात 12 बजे तक चलेगा. मेरा आपका साथ रहेगा शालीमार FM रेडियो 94.6 पे और हम इसमें खूबसूरत से ट्रैक भी सुनेंगे और बातें भी होंगी और वो तमाम चीजें जो लोग छुपाए बैठे हैं हम उस पर गुफ्तगू करेंगे. देखते हैं कि सजाद अली वगदी रावी विच क्या कहते हैं, वो क्या बात करते हैं, उनको भी सुनते हैं. Stay blessed, stay tuned. Shalimar FM 94.6. जे इथों कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला मैं पानी चो सान छोड़ ला कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला मैं पानी चो सार छोड़ ला जे इथों कदी रावी लंघ जावे किसे सुनानी कोई नहीं अखां च दरिया खोल के मैं जख्म दिखा ते रोड़ ला जे तू कदी रावी लंघ जावे मजबूरी
West. Stay tuned. Shalimar FM 94.6. सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आंदा मिठी मिठी कूक माया आप सुन रहे हैं शालीमार एफएम रेडियो 94.6। आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आज का हमारा मौजू है कामयाबी का टिकट, और कामयाबी का टिकट हासिल करने के लिए अभी दौड़ लगाइए, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। कामयाबी कैसे मिलती है, कैसे हमने आगे बढ़ना है, किस तरह से हमने अपनी मंजिल को लिए चलना है, और आपको डायल करना है 042371768882। यह है हमारा स्टूडियो का नंबर, जिस पे आप कॉल करेंगे और आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। कामयाबी को हमने कैसे बढ़ावा देना है, किस तरह से हमने कामयाबी को लिए चलना है, और कामयाब लोग अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं, कामयाबी किसको कहते हैं, कुछ सुन लीजिए मेरी गुफ्तगू। अमेरिका में एशियाई मुल्कों से आए हुए जो लोग आबाद हैं, जो एशियन है, मुख्तलिफ मुल्कों से जो आए हुए हैं, उनकी आमतौर पर एशियन अमेरिकन उन्हें कहा जाता है। यानी जो बहुत से लोग वहां पे रहते हैं उन्हें एशियन अमेरिकन कहा जाता है। ये लोग ज्यादातर 1965 के बाद यहाँ पे आए। अमेरिका में इनकी मौजूदा तादाद तकरीबन काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट कोई 5% तक पहुंच चुकी है, इससे भी ज्यादा। इनमें से कुछ डिफरेंट हैं, कुछ किसी और इलाकों से, लेकिन एशियंस लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। कुछ कन्फ्यूशियस को मानने वाले हैं, और इसी तरह बहुत से डिफरेंट लोग यहाँ पे रहते हैं। अमेरिका में अपने मुस्तकिल की तामीर का मतलब, अगर वो समझते कि उनके इर्द गिर्द किसी को जो एशियन है कि वो सदर के ओहदे पर पहुंच जाए, तो उन्हें अमेरिका में अपने लिए तरक्की का दरवाजा बिल्कुल बंद नजर आता है, चाहे वो कितना ही टॉप पे जा चुके हो, कितने बड़े बिजनेसमैन हो चुके हो, क्योंकि सदर के ओहदे के लिए अमेरिका का सिटीजन होना, पैदाइशी शहरी होना जरूरी है। और एशियाई लोग इस तारीफ में नहीं आते। सदारत को अपना निशाना बनाने की सूरत में एशियाई मुहाजिरीन या तो मायूसी का शिकार होते हैं, या इस बात की नाकाम मुहिम चलाने के अमेरिकन दस्तूर में तरमीम करके सदारत को उनको शर्त खत्म की जाए, ताकि उनका आदमी भी सदर के ओहदे के लिए आगे बढ़ता चला जाए। मगर एशियाई अमेरिकियों ने इस किस्म की हमाकत नहीं की। उन्होंने अपने इर्द गिर्द के अपने हालात के एतबार से अमेरिका का जायजा लिया, तो उन्हें नजर आया कि यहां उनके जैसी अकलियत के लिए अगरचा सदारती ओहदा तक पहुंचने के मौके नहीं हैं, मगर आला तालीमी ओहदों तक पहुंचने के लिए मौके हैं।
उन्होंने पाया कि तालीम उनके लिए कामयाबी के टिकट टू सक्सेस की हैसियत रखती है। उन्होंने अपनी सारी ताकत तालीम के हसूल में लगा दी। उन्हें जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई, हत्ता कि तादाद में 2% होते हुए 5% तक होते हुए वो आला तालीमी इदारों में 20% तक उनको सीटें मिलने लग पड़ी। उस पर वो काबिल। तालीम हमारी कामयाबी का टिकट है। यही दुनिया में कामयाबी हासिल करने का तरीका है। हमारा आज का मौजू कामयाबी का टिकट। कामयाबी का टिकट कैसे मिलेगा? कामयाबी का टिकट मेहनत से मिलेगा। कामयाबी का टिकट सक्सेस कैसे मिलेगी? हमने कैसे आगे बढ़ना है? हमने स्ट्रगल करनी है, हमने मैदान में भागते रहना है, हमने कम सोना है, 24 आवर में कम से कम नींद लेनी है, बाकी वक्त हमने मैदान में भागते चले जाना है। यही है हमारी कामयाबी का टिकट। और कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो कम सोते हैं, कम खाते हैं और मैदान में दौड़ते चले जाते हैं, अपने घोड़े दौड़ाते चले जाते हैं। आप इस सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। और आज का हमारा मौजू है कामयाबी का टिकट। अब कामयाबी के टिकट पर हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ती चली जाएगी। डिफरेंट लोगों पर मैं आपसे बात करता चला जाऊंगा, आप भी अपनी बात हमें सुनाते चले जाएंगे। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ना एटीवी चैनल के रेडियो नेटवर्क शालीमार 94.6 एफएम पे, और आप नंबर डायल कर सकते हैं। अभी इसी वक्त मैं स्टूडियो में आपके साथ मौजूद हूं। आपकी कॉल को लिए प्रोग्राम में शामिल करूंगा, कॉल थ्रू करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, सारी दुनिया आपकी बात सुनेंगी। आप क्या कहते हैं कामयाबी के बारे में? कामयाबी का टिकट आप किसको कहते हैं? मैं अपनी राय दूंगा, आप अपनी राय देंगे। आए बढ़ें, हम क्यों ना हिम्मत करें और जो प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको एनकरेज करें कि कामयाबी का टिकट मौजूद है। अपनी जेब में हाथ तो डालें, आपको खुद ही टिकट मिलेगा। आपको डायल करना है 0423 7176882 और आप सुन रहे हैं शालीमार एफएम 94.6 रेडियो। ये प्रोग्राम लाहौर स्टेशन से पेश किया जा रहा है। मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल। मिठी मिठी कूक सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आंदा मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आंदा मेरे दिल विचों उठदी माया मैनू याद आंदा मिठी मिठी मेरी द्वाला चल कदों चढ़ेगा अल्लाह जाने माही कदों मेरे वड़ेगा
ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਝਰਨੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਛਾਵਾਂਗੀ ਵਿਛਾਵਾਂਗੀ ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਛਾਵਾਂਗੀ ਵਿਛਾਵਾਂਗੀ ਜਾਨ ਛੱਡੀਏ ਵਿਛੋੜਿਆ ਨੇ ਫੂਲ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਏ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ शरीक में ताने मारते ने अपने शरीक में लिख चिट्ठी विच आउण दी तरीक में काली रात वाली डंगे मैनू माया मैनू याद आंदा ਝਰਨੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਝਰਨੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹੰਝੂ ਮੇਰੇ ਵਗਦੇ ਵਗਦੇ ਕੱਤਾਂ ਪੂਣੀਆਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਮੇਰੇ ਵਗਦੇ ਵਗਦੇ ਕੱਤਾਂ ਪੂਣੀਆਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਮੇਰੇ ਵਗਦੇ ਵਗਦੇ ਹੁਣ ਹਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਕੱਤਾਂ ਪੂਣੀਆਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਮੇਰੇ ਵਗਦੇ ਹੁਣ ਹਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਲੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਏ
हमें कामयाबी को छूने के लिए भी किसी चरखे को हाथ लगाना पड़ता है। चाहे वो मशीन खराब हो, हमें उस मशीन को चलाना पड़ता है, तभी हम कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कितना खूबसूरत कलाम था कि चरखे की जो कूक है वो भी तो इंसान रहा है। हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं हमारे नंबरों के जरिए। शालीमार एफएम रेडियो 94.6 आपके लिए आज ला रहा है वो गुफ्तगू जिसका मौजू है कामयाबी का टिकट। और याद रखिएगा, थोड़ी सी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि पेइंग अटेंशन टू योर किड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज इज स्मार्ट बट देयर्स अनदर गैजेट related danger that needs to be on your radar. एहतियात बहुत जरूरी है अपने बच्चों से गैजेट्स को लिए। देखते हैं हमारे साथ कौन अपनी मोहब्बत के फूल लिए आया है। हमारा कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल जी, ठीक है जी। दार हुसैन डोगर बात कर रहा हूँ, पूरा के पास गाँव है सौकी मलिया वहाँ से। जी जी बिल्कुल जी, दिलदार साहब। हाँ सर, आपका अच्छा शो है माशाल्लाह, हमेशा की तरह अच्छा बोलते हैं आप, सुन के मजा आ रहा है आपको, और मौजू भी अच्छे लेकर आते हैं। बहुत शुक्रिया जी डोगर साहब। क्योंकि कामयाबी की जो आपने ये बता रहे हैं कि कामयाबी की जो कुंजी है, जो चाबी है, जो टिकट है, वो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब फर्स्ट ऑफ ऑल तो माँ बाप की दुआएं जी, गुड। और दूसरी बात ये है कि सच्ची लगन और मेहनत का जो इंसान होता है ना, उसको डेफिनेट कामयाबी जरूर मिलती है, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए। जी बहुत अच्छा डॉगर साहब, आप तो जिम्मेदारा करते होंगे। बिल्कुल जिम्मेदारा भी करते हैं, लेकिन मैं अदरवाइज आपने एक शॉप बनाई है छोटी सी अपने घर ही, किराने की। अच्छा। उधर भी बैठता हूँ मैं। चलिए बहुत अच्छा जी, आप हमारा प्रोग्राम सुनते जाइए, आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है हमेशा, और कल का शो भी बहुत अच्छा था आपका। और डॉक्टर साहब इंशाल्लाह हमें तो बहुत खुशी हुई है कि 94.6 ने कामयाबियों को छुआ है हमेशा, और दोबारा ये इन लोगों ने ये शोज वगैरह जो शुरू किए हैं, हमें बड़ा मजा आ रहा है सुन के, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आपके साथ हमेशा रहें इसी तरह। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। काशिफ को वो और अरशद साहब की जो काविशें हैं, उनकी मेहनतें हैं, जो वो रंग ला रही हैं इंशाल्लाह, और अच्छे से अच्छा प्रेजेंटर आपकी तरह हमें सुनने को मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। साहब जाते हैं वक्त एक हमेशा मैं एक दुआ दिया करता हूँ जी, खुदा ना खासा अगर कोई बीमार है उनके लिए गेटवेल सुन बोलते हैं, और जिनकी सालगिरह है आज, उनको बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक हो गया जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। देखिए डॉक्टर साहब कितने मोहब्बत वाले हैं कि डॉक्टर साहब ने जाते जाते उन लोगों को हैप्पी बर्थडे टू यू कह दिया है जिनकी आज बर्थडे है। वाह अमेजिंग डॉक्टर साहब, यू आर वेरी लवली मैन, फैंटास्टिक। उन तमाम लोगों को हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी रात 12 नहीं बजे, तो 12 से पहले जिनकी बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे टू यू डोगर साहब की तरफ से, और जिनके जब 12 बज जाएंगे तो 12 के बाद जिनकी बर्थडे शुरू होगी उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। डोगर साहब ने कहा ना कि कामयाबी माँ बाप की दुआएं हैं। यस ट्रू, माँ बाप की दुआओं से तो जिंदगी बन जाती है। वो माँ बाप ही तो हैं जो उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, वो माँ बाप ही तो हैं जो हमारे मुंह में जबान देकर हमें अपनी जबान अदा करते हैं। वो माँ बाप ही तो हैं कि जो लफ्ज वो बोलते हैं हम उस लफ्ज के पीछे पीछे बोलते चले जाते हैं। और वो प्यारे खूबसूरत माँ बाप ही तो हैं जो हमें सबसे पहले स्कूल मदरसे में छोड़ कर आते हैं। उनकी दुआओं के साथ फिर कामयाबी का पहला कदम शुरू हो जाता है, और फिर वो कामयाबी हमारे इल्म, अक्ल और शऊर पर आकर खड़ी हो जाती है कि हमारा इल्म हमें क्या कहता है, हमारी अक्ल हमें क्या कहती है, हमारा शऊर हमें क्या कहता है, और यूं जिंदगी की दौड़ भागती चली जाती है। फिर हम घोड़े पर सवार होते हैं, मैदान में निकलते हैं, और फतह हमारे नसीबों में आती है कामयाबी के साथ। हमारा प्रोग्राम का आज मौजू कामयाबी का टिकट। आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको सिर्फ डायल करना है नंबर, आप सुन रहे हैं
एटीबी चैनल के रेडियो नेटवर्क शालीमार एफएम रेडियो 94.6 से मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूं, जहां तक ये आवाज जा रही है और आवाज की दुनिया के दोस्तों जिधर तक आपकी समातों को ये आवाज छू रही है, मेरा आपका साथ रहेगा रात 12 बजे तक, 10 बजे से 12 बजे तक हर बुध और जुमे रात को मैं आया करूंगा आपके साथ इस प्रोग्राम में और डिफरेंट मौजूआत लेकर आऊंगा जिस पर आपकी और मेरी गुफ्तगू होगी और हम उन लोगों को हौसला देंगे, उनको एनकरेज करेंगे, उन लोगों को एक ट्रैक देंगे जो बिल्कुल कामयाबी को छोड़कर और बैठ गए बस खत्म हुआ सब कुछ। ऐसा नहीं है। कामयाबी के टिकट के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको डायल करना है 0423717682। दोबारा सुनिए नंबर और आ जाइए इस मैदान में 0423717682। लाहौर स्टूडियो से मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ शामिल हूं और शालीमार एफएम रेडियो 94.6 पे आप मुझको सुन रहे हैं और हमारे कॉलर आगे बढ़ रहे हैं और सुनते चले जाइए, साथ साथ आप ट्रैक भी सुनते चले जाएंगे। हमारा आपका साथ चलता जाएगा। टाइम बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। देखते हैं कि हमारे साथ अगले कॉलर कौन आए हैं। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है? जी कौन साहब और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कासिम बात कर रहा हूँ लाहौर से। कासिम साहब लाहौर से, शालीमार से। जी कासिम साहब, जी आपका क्या माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छी जा रहा है। थैंक यू कासिम साहब, खुशामदीद। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आप तो और कुछ भी नहीं कहना चाहते, सिर्फ बात ही करना चाहते हैं। बात हो गई है। अच्छा ठीक है, और कोई बात नहीं है। जी ठीक है जी काशिफ साहब, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। जी जी वेलकम 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 वेलकम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जाता है, हर रोज सुनता हूँ। जी बिल्कुल, शुक्रिया जी काशिफ साहब। ओके जी ओके, खुदा हाफिज खुदा हाफिज। आप सुन रहे हैं मुझको शालीमार रेडियो से कामयाबी के टिकट के प्रोग्राम में।
इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी कामयाबी को छोड़े बैठे हैं, समझते हैं कि वो ब्लाइंड हैं, जबकि वो ब्लाइंड नहीं है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाकामी को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और समझते हैं कि वो बस ब्लाइंड हो गए हैं, जबकि वो अपने आप को अपनी मन की दुनिया से खिलवाड़ कर रहे हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कामयाबी का टिकट। कामयाबी का टिकट आपका मुंतज़िर है, आपने मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, हिम्मत और हौसले को लिए बढ़ते चले जाएं, अपने आप को नफ्सियाती मरीजों से बाहर निकालने। आप नहीं हैं नफ्सियाती मरीज, कामयाबी का टिकट आपके पास मौजूद है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी है, खुला मैदान आपके सामने है, आए और मिलके क्यों ना हम अपने खूबसूरत वतन को संवारें, खुद को भी संवारें और वतन को भी संवारें। कई दिनों से मैं बड़ा उदास रहता हूं। आओ मेरे सुनने वालों, शामिल हो जाओ मेरी बातों के संगत में। चुपके से सरगोशी में मैं तुमसे पूछूं, मुझे तुम याद आते हो। मैं तेरी गोद में सर रख के ऐसे खो जाऊं, दुनिया से बेखबर हो जाऊं। क्या मतलब है, क्यों मैं बेचैन रहता हूं, मुझे तुम याद आते हो। मन की दुनिया के इस प्रोग्राम के लिए मैं आपके साथ शामिल हूं और आप हमारे इस टॉपिक को समझ रहे हैं कि नाकामी क्यों होती है। कामयाबी का टिकट हमारे अपने पास मौजूद है और देखिए हमारे साथ कौन से कॉलर आए हैं कामयाबी के टिकट को लिए। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड आदाब डॉक्टर साहब, असदुल्ला ससरी नारंग मंडी से आपके साथ समाते जोड़ के बैठा हुआ है। अरे वाह असदुल्ला साहब, आप तो कोई बेस्ट फ्रेंड ही बन गए, आप तो हर प्रोग्राम में आने लग पड़े। सर ये जो आपने खूबसूरत कलाम से नवाजा है ना, ये बहुत खूबसूरत कलाम और गजलें भी खूबसूरत लगा रहे हैं आप जी। तो कामयाबी की वजूहात तो आप माशाल्लाह बता ही रहे हैं जी। तो लेकिन मैं भी कुछ इसी तरह से ना जी जी कभी मैं मुलाजमत किया करता था। मैं एक टेक्निकल टर्नर हूँ जो 3 साल के डिप्लोमा मैंने किया पंजाब यूनिवर्सिटी से जी 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 जी। तो उसके बाद मैंने कोई 10 साल गालबन मुलाजमत की जी। तो कोशिश करते चला गया और इंशाल्लाह आज मैं खुद एक वर्कशॉप का मालिक हूँ। तो वही बात है ना, कोशिश करने से जो है ना हालात संवर जाते हैं जी। तो बिल्कुल बात यही है, कोशिश जो है ना वही बंदे को कामयाबी की तरफ लेके जाती है। यहाँ तक कि माँ बाप की दुआएं तो होती हैं हर पल हर घड़ी, तो लेकिन बंदे की कुछ अपनी भी जो है ना कोशिश कावश होनी चाहिए कि मैं ये करके रहूंगा। जी जी जी। तो वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको उसका फल देता है। देखिए ना, आपने जॉब की और जॉब के साथ आपने वर्कशॉप बना ली और आज आप वर्कशॉप बना के कितनी तरक्की कर गए, तो आप तो खुद एक कामयाब शख्स हुए।
جی تو وہی بات ہے نا, وہ کل پروگرام میں پہلے کبھی میں بیزار رہا ہوں, لیکن اس کے بعد پھر میں نے یہ جو ہے نا اپنے آپ کو ڈھونڈا ہے کہ یار میں تو جو ہے نا ایک خوبصورت انسان ہوں اور میں کامیاب ہو سکتا ہوں. جی 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 جی, تو آپ کامیاب شخص ہیں, آپ نے دیکھے نا برکشاپ بنائی, آپ کمائی کر رہے ہیں اور کامیاب ہیں, تو آپ فرصت میں ہمارے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں, کیا بات ہوئی. تو سر یہ جو ہے نا ریڈیو, یہ ہمارے لیے ایک درس گاہ ہے. جن چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے وہ ہم کو یہاں سے ملتی ہیں, ہم سیکھتے ہیں. تو آپ جیسے جو دانشور لوگ ہیں نا, ان کے لب و لہجے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. واہ, بہت شکریہ آپ کی مہربانی. تو جناب بہت پیارا پروگرام جا رہا ہے. اگر ہو سکے تو شاہد آسمی صاحب کی ایک غزل ہے کہ پہلو میں وہ آج جانے کی ضد نہ کرو, یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو. اگر ہو سکے تو یہ سنوا دیجیے. اسد اللہ صاحب آبادی رات کو یہ غزل سنیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو سنا دیتے ہیں. اوکے جی, خدا حافظ. اسد اللہ صاحب نے اپنی فرمائش بھی کر دی. آپ دیکھیں کہ اسد اللہ صاحب کتنے زندہ دل آدمی ہیں. یقیناً انہوں نے اتنی سٹرگل کی, آگے بڑھے اور اپنی ورکشاپ بنائی. اب ورکشاپ سے یقیناً فارغ ہونے کے بعد اب وہ پروگرام سن رہے ہیں, اور پروگرام سن کے بھی وہ کتنے زندہ دل ہیں. کیا کہہ رہے ہیں, آج جانے کی ضد نہ کرو. کون جا رہا ہے آپ کے پاس سے اسد اللہ صاحب؟ کوئی جا ہی نہیں سکتا آپ کے پاس سے, اور یوں ہی روٹھے رہو یا پاس بیٹھو. ابھی غزل آپ کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو یہ غزل سناتے ہیں. اور اسد اللہ صاحب ہمارے بہت اچھے کالر ہیں, بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں. اور زندہ دل انسان کبھی نہ بوڑھا ہوتا ہے, نہ بیمار ہوتا ہے, نہ بیزار ہوتا ہے, اور کامیابی کا ٹکٹ تو ایسے ہی لوگوں کے پاس رہتا ہے. کتنے خوبصورت انہوں نے باتیں کی. اس کا مطلب کہ یہ کتنے کامیاب شخص ہیں. اور جاتے جاتے انہوں نے کہہ دیا, مجھے سنا تو دو بھائی, آج جانے کی ضد نہ کرو. آپ سن رہے ہیں پروگرام شالیمار ایف ایم ریڈیو 94.6 سے. میں ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کے ساتھ بالکل لائیو پروگرام میں, اور آپ ہمارے پروگراموں میں شامل رہ سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہوں. یہ پروگرام آپ ہر بدھ اور جمعرات کو سنیں گے رات 10 بجے سے 12 بجے تک. گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ 11 بجنے کے قریب قریب ہے, اور 1 گھنٹہ رہ گیا ہے میرا اور آپ کا ملاقات کا, اور پھر وقت آخر آج کا تمام ہو جائے گا. رات بیتتی چلی جائے گی, ہم آخری آدھی رات کے پاس سے گزرتے چلے جائیں گے, اور پھر یوں ہی دن ختم ہو جائے گا. پھر اگلے ویک بدھ کے دن دوبارہ لوٹ آؤں گا آپ سے گفتگو کے لیے. آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0423717682, اور اے ٹی وی چینل کے ریڈیو نیٹ ورک شالیمار 94.6 FM لاہور اسٹوڈیو سے میں ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کے ساتھ اس پروگرام میں. اور پروگرام کا چونکہ موضوع ہے کامیابی کا ٹکٹ, ڈاکٹر صاحب نے جیسے پہلے کہا کہ ماں کی دعائیں, یقیناً ماں باپ کی دعائیں. ابھی اسد اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ ہی تو بات بنتی ہے. تو میں یہ کہوں گا, اے ماں تیری عظمت کو سلام, میری دھڑکنوں میں لکھا ہے تیرا نام. اے ماں, ہے ماں کے قدموں تلے جنت, فرمایا خدا نے, قدرت کا اپنی کرشمہ دکھایا خدا نے. مخلص محبت کو ماں کا نام دیا خدا نے, اپنی شفقت کو ماں کی دھڑکن بنا دیا خدا نے. ہے سب سے بلند مرتبہ ماں کا, فرمایا خدا نے. ممتا کا ساگر ماں کے سینے میں بھر دیا خدا نے. ماں کی صورت مجھ کو پرسکون گھر دیا خدا نے. قیامت کے دن اٹھائے گا لے کر نام ماں کا, ہے بتایا خدا نے. نہیں دنیا میں ماں کی محبت سے بڑھ کر محبت کوئی,
जेब ये इरशाद फरमाया रसूले खुदा ने। माँ बाप की दुआओं से जिंदगी बनती है, अजमत बनती है, बुलंदी बनती है, और यही वो सूरत है। और हमारे प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं, बिल्कुल इस वक्त, और ये प्रोग्राम आपके साथ चलता रहेगा रात 12 बजे तक। आप प्रोग्राम सुनते रहेंगे और मेरा आपका साथ रहेगा हफ्ते में 2 दिन, जो कि होगा बुध और जुमेरात को रात 10 बजे से 12 बजे तक। लाइव कॉल्स के लिए आप डायल कर सकते हैं 04। हमारा आज का टॉपिक है कामयाबी का टिकट। कामयाब लोग कौन हैं? कौन बनते हैं कामयाब लोग? कामयाब वही हैं जो मेहनत करते हैं, हिम्मत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कामयाबी उनको छूती चली जाती है। यही दुनिया में कामयाबी हासिल करने का तरीका है। इस दुनिया में हमेशा ऐसा होता है कि कुछ मौके या कुछ मौके आदमी के लिए खुले हुए होते हैं और कुछ मौके उसके लिए खुले हुए नहीं होते। कुछ लोगों के लिए नहीं खुलते, कुछ लोगों के लिए खुलते हैं, लेकिन जो हिम्मत किए चले जाते हैं, स्ट्रगल किए चले जाते हैं, उनके लिए मौके खुल ही जाते हैं। आदमी की बेहतरीन अक्लमंदी यह है कि वो खुले हुए मौके को इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करे। अगर उसने बंद दरवाजों से सर टकराया तो दरवाजा तो नहीं खुलेगा, अलबत्ता उसका सर जरूर टूट जाएगा। खासतौर पर तालीम आज की दुनिया में कामयाबी का टिकट है, और इस टिकट को हासिल करने के लिए मौके हर आदमी के लिए हर जगह खुले हुए हैं। यह असूल जो अफराद की तरक्की का राज है, वही मुल्कों और कौमों की तरक्की का राज भी है। और इस सिलसिले में बहुत सी दुनिया ने तरक्की की, लेकिन इस कामयाबी की तरक्की के पीछे किताब का साथ है, किताब की दौलत, किताब की अजमत का साथ है। और जापान के बारे में एक अमेरिकी मुसन्निफ की एक किताब छपी कि जिसका नाम है कि जापान नंबर 1 की हैसियत है। 250 सफ़े की इस किताब में मुसन्निफ ने लिखा उसमें कि जापान किस तरह दूसरी जंग अज़ीम में मुकम्मल शिकस्त खाने के बाद दोबारा इस तरह खड़ा हो गया कि खुद अपने फातह के लिए चैलेंज बन गया। और उसमें वो कहते हैं कि मुसन्निफ कहते हैं कि जापानी लोग तब्दीली के आका बन गए, बजाय इसके कि वो उसका शिकार हो जाए। दूसरे ममालिक को बैरूनी असरात ने बर्बाद कर दिया, मगर जापानियों ने इससे ताकत पाली। लेकिन स्ट्रगल, हिम्मत करते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। और जरूरी नहीं कि आपके पास कोई किताब का तालीम होगी, किताबी इल्म होगा, आपकी एजुकेशन होगी तो आप कामयाबी का टिकट हासिल कर सकते हैं। एक ड्राइवर भी कामयाबी के टिकट में शामिल है। वो ड्राइव करता है, सारा दिन ड्राइव करता है, कामयाबी उसके मुकद्दर में बन चुकी है। एक मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है, कामयाबी का टिकट उसके पास मौजूद है। एक लोहार सारा दिन लोहा कूटता है, और जब लोहा कूटता है तो उसके हाथ भी लोहे वाले बन जाते हैं। उसके पास कामयाबी का टिकट है कि वो लोहे को तोड़ मरोड़ के ना जाने कितनी कितनी बिल्डिंगें बना जाता है। ये कामयाबी का टिकट है। एक सुनियार, उसके पास टूटी हुई सोने की ईंटें आती हैं, वो उसको पिघलाता है, आग में डालता है, और उसके बाद वो ना जाने कितनी खूबसूरत ज्वेलरी बना लेता है। ये कामयाबी का टिकट उसके पास मौजूद है। और ये कामयाबी का टिकट हर शख्स के पास मौजूद है, जिसके पास हिम्मत है, जिसके पास ताकत है। और ताकत कैसे है? अकल ताकत देती है, जिस्म ताकत नहीं देता। आपकी सोच आपको ताकत देती है। आपकी सोच अच्छी होगी तो आपको ताकत मिलती चली जाएगी। अगर आपकी सोच आपके बारे में ये कहती है कि मैं सेहतमंद हूं, तो यकीनन आप सेहतमंद हैं। अगर आपकी सोच ये कहती है कि आप मजबूत हैं, तो यकीनन आप बहुत मजबूत हैं। अगर आपकी सोच ये कहती है कि आपसे तो कोई और दूसरा है ही नहीं, तो यकीनन कामयाबी की टिकट आपकी जेब में मौजूद है। आप सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम को शालीमार एफएम रेडियो 94.6 लाहौर स्टूडियो से। मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ इस प्रोग्राम में रात 12 बजे तक।
चूम के मेरे खत को बड़ा रोया करोगे जब उसके सारे टुकड़े तुम जोड़ा करोगे। तुम्हें याद आएंगे वो गुजरे हसीन पल जब तुम आईने में खुद को देखा करोगे, जब रातों को तुम्हें तुम्हारी खुशबू सताएगी, बेचैनी में तुम जुल्फों को खोला करोगे। आ जाया करेंगे तेरी आंखों में आंसू जब कोई शोख गीत भी गाया करोगे। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम जो कि आज का हमारा टॉपिक है कामयाबी का टिकट। कामयाबी का टिकट कैसे मिलेगा? लोग प्राइज बॉन्ड लेते हैं कामयाबी के टिकट के लिए, लोग शॉर्टकट खेलते हैं कामयाबी के टिकट के लिए, लोग रेस में भागते हैं कामयाबी के टिकट के लिए, लोग टिकट ब्लैक करते हैं कामयाबी के टिकट के लिए। है ना ऐसा? ये सब कुछ शॉर्टकट है। शॉर्टकट कभी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा नहीं सकेगा। शॉर्टकट कभी ना कभी आपको ऊंची बिल्डिंग से धक्का दे देगा। कामयाबी का टिकट आपको उस वक्त मिलेगा जब आप एक ट्रैक पर दौड़ लगाएंगे। आप सीधे ट्रैक पर रहेंगे, ना आप राइट देखेंगे ना लेफ्ट देखेंगे, और आप अपने घोड़े की सीध पर भागते चले जाएंगे और रेल ट्रेन पीछे रह जाएगी, आप आगे भागते चले जाएंगे। इसकी मिसाल आप यूं ले लें, आप नहर पे खड़े रहो, एक कागज की कश्ती बनाएं और उस कागज की कश्ती को नहर पे छोड़ दें। नहर का पानी बहुत स्लो रिदम के साथ आहिस्ता आहिस्ता उस कागज की कश्ती को लिए चलता चला जाएगा। आप उसके साथ चलते चले जाएं, रास्ते में सिग्नल आएगा, आप भागते चले जाएं, आप कागज की कश्ती से आगे हो जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। लेकिन जब रास्ते में एक सिग्नल आएगा, आपको सिग्नल पे ट्रैफिक की वजह से रुकना पड़ेगा, लेकिन वो कश्ती कागज की एक ही रिदम में रहेगी और वो आपसे आगे भागती चली जाएगी, क्योंकि वो रिदम पे है, वो आहिस्ता आहिस्ता है। उसने जिगजैग नहीं लिया, उसने शॉर्टकट नहीं लिया, वो तो रिदम में है। तो रिदम तो कहते हैं मोहब्बत की कुंजी को, और मोहब्बत की कुंजी क्या है? अरे रिस्क है तो इश्क है, और इश्क है तो रिस्क है। अगर आगे बढ़ना है तो किताब को खोलें, मैदान में आगे भागें। आप अगर लोहार हैं तो लोहे पे थाप लगाते चले जाएं। अगर आप ड्राइवर हैं तो दिल लगाकर मेहनत करते चले जाएं। अगर आप मजदूर हैं तो ईंटें उठाते चले जाएं। अगर आप बिल्डर हैं, राज हैं, मिस्त्री हैं, तो ईमानदारी से अपनी बिल्डिंग को बनाते चले जाएं। जहां पे आप शॉर्टकट लेंगे आप बहुत पीछे गिर जाएंगे। जहां पे आप सीधे ट्रैक पे रहेंगे, आप याद रखिएगा आज के प्रोग्राम की रात के 11:15 हो रहे हैं। मैं डॉक्टर जलील असलम आपको आप बीती बता रहा हूं, मन की बातें बता रहा हूं। ये मन की बातें शायद आप खुद न पढ़ पाएंगे, ये शायद किताबों से मिल ना सके। आप कहेंगे लफ्ज बड़े शकील हैं, लफ्ज बहुत मुश्किल हैं, लेकिन मैं आपको शालीमार एफएम रेडियो 94.6 पे रात के उस पहर में बात बता रहा हूं, जब आप सोने की तैयारी में होंगे, जब आप कुछ न कुछ चीखो पुकार शोर शराबा घर में कर रहे होंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपकी अपनी ही जेब में मौजूद है कामयाबी का टिकट, तो क्यों ना हम आगे बढ़ें। सुबह का सूरज निकले तो इस ईमानदारी के साथ हम आगे बढ़ें कि आज का दिन हमने एक मंजिल को तय करना है। अगर वो मंजिल गिरा दे तो कल फिर खड़े हो जाएं, अगर फिर गिर जाएं तो फिर दोबारा खड़े हो जाएं, अगर फिर गिर जाएं तो फिर खड़े हो जाएं। अगर 11 मरतबा गिरना पड़ा तो गिरें, 12वीं दफा आप नाकाम नहीं होंगे। 12 दफा वाला कभी हारता नहीं है, फिर 13वीं दफा आप इतने स्ट्रांग होकर अपने मैदान में उतरेंगे, आप अपने फील्ड के कारीगर बन चुके होंगे। 12 दफा हारने वाला 13वीं दफा हारता नहीं है, वो अपने फील्ड का कारीगर बन जाता है। आप ऐसे कारीगर बन जाएंगे कि लोग आपसे काम करवाना, लोग आपके इंस्टीट्यूट में आना, लोग आपसे हेल्प लेना, लोग आपकी इर्द गिर्द बैठना फख्र महसूस करेंगे।
اور یہ فخر، یہی تو ہے کامیابی کا ٹکٹ. اس کامیابی کے ٹکٹ کو جیب میں ہاتھ ڈالیں، آپ کی جیب میں موجود ہے، اور یہ ٹکٹ آپ کو لیے چلا جا رہا ہے ہوا کی دوش پہ، آواز کی گونج میں، ہواؤں کی لہروں میں. میں ڈاکٹر جلیل اسلم شالیمار FM ریڈیو سے آپ کے ساتھ موجود ہوں، لاہور اسٹوڈیو سے. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ میں نے آگے بھی کال کی تھی آپ کو، حافظ ظہیر. جی آپ صاحب. سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ شالیمار کے جو پروگرام ہے کب شروع ہوں گے باقاعدہ؟ شروع ہو تو گئے، میں اور آپ میں اکٹھے بیٹھ گئے. پروگرام کرتے ہیں رات کو؟ کیا جی؟ یہ کی پروگرام کرتے ہیں رات کو؟ یہ آپ میرا پروگرام تو سنا کریں گے ہر بدھ کو اور جمعرات کو 10 بجے سے رات 12 بجے تک، اور اسی طرح دوسرے پروگرام بھی شروع ہو چکے ہیں، آپ وہ بھی سنتے چلے جائیے گا، آپ کو پتہ چلتا جائے گا. پروگرام شروع ہو گئے شالیمار کے، آپ آن کیا کریں روز شالیمار کو. سر میں نے یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو صبح پروگرام کرتے ہیں گڈ فرسٹ مارننگ جو کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں؟ وہ نہیں کرتے، وہ شروع ہو رہے منڈے سے پیر والے دن سے وہ بھی شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، بالکل بالکل. سر وہ ایک اور بات پوچھنی میں نے آپ سے. جی. یا سر قاضی صاحب کا پتا ہے آپ کو کچھ؟ نہیں بالکل بھی نہیں پتا. آپ تو مجھ سے میرا حال پوچھیں، میں تو خود اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا. حافظ صاحب تھینک یو. حافظ صاحب دوبارہ پوچھ رہے تھے کہ کیا پروگرام شروع ہوں گے شالیمار. شالیمار اب آپ کے سامنے ہے، شالیمار میں باغ ہے، یہ شالیمار باغ کے پھول کھلے ہوئے ہیں، اور پھول جو ہیں وہ کھل چکے ہیں، چونکہ بیج ڈالا گیا تھا، پھول کھل گئے ہیں، اور پھول کھلے ہیں تو ہم بھی تو آ گئے نا، اسی لیے حافظ جی. تو اب یہ پھول کھل گئے ہیں شالیمار کے باغ میں، اور شالیمار FM 94.6 ریڈیو پہ آپ سنیں گے، سبھی کو سنیں گے. مجھے تو اب سنیں گے بدھ اور جمعرات کو، اور اسی طرح بہت سے لوگوں کو سنیں گے. بہت سے پروگرام شروع ہو چکے ہیں، جیسے کہ تیمور صاحب بھی اپنا پروگرام کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس میں پروگراموں میں شامل ہو چکے ہیں. آپ کو ہر روز اچھی اچھی خوبصورت آوازیں سننے کو ملیں گی. آپ ریڈیو ٹریک آن رکھیں ریڈیو کو، اور شالیمار 94.6 کو آن رکھیں. رواں دواں ہے شالیمار کا باغ، باغوں میں بہار آئی، پھول سجے، خوشبو مہکی، اور یہ خوشبو آپ تک چھا رہی ہے. میرے دل کے ارمان جگا دیتی ہے جب یاد تیری آتی ہے، میرے زخموں کو پھر سے ہرا کر دیتی ہے جب یاد تیری آتی ہے. میرے سینے میں پھر سے ٹیس اٹھنے لگتی ہے درد کی، یادوں کا طوفان اٹھنے لگتا ہے جب یاد تیری آتی ہے. میرے کانوں میں رس گھولنے لگتی ہے تیری میٹھی آواز، ہر بار یادوں کا طویل سلسلہ دے جاتی ہے جب یاد تیری آتی ہے. بڑی محبت سے میرے آنگن میں ہنسی پھرتی ہے آ کر، میرے دل میں بے قراری کا سمندر ابلنے لگتا ہے جب یاد تیری آتی ہے. ہمارا آج کا سفر رواں دواں ہے کامیابی کی طرف، اور کامیابی کی منزل گول آپ کے اور اپنے ہمارے ہم سب کے پاس ہے. اور ہمارا یہ سفر رواں دواں رہے گا. اس کی جادو بھری نظروں کی طرح رنگ جھلکتا رہے گا، چھپکے چھپکے ریشمی
होठों की तरह मुस्कुराहट की कलियां खिलती रहेंगी और शालीमार रेडियो को आप सुनते चले जाएंगे। उसके दिल की धड़कन में सपनों की तरह धुन जो बजती है और मेरे कान भी सुनते हैं आवाज उन साजों की, अपने रंगीन आंचल में वो ले जाएंगे। आइए, आज की मंजिल, आज का मौजू, आज का हमारा प्रोग्राम जिस पर हमने बज़्म गीती के मकीनों को सजा रखा है, हम अपने प्रोग्राम को लिए चल रहे हैं। हमारी मंजिल कामयाबी के सफर की तरफ है, कामयाबी का टिकट, और कामयाबी का टिकट हर वो शख्स पा सकता है। कामयाबी हर शख्स के पास मौजूद है, लेकिन नजर किसी किसी की पड़ती है। और आप डायल कर सकते हैं अभी इसी वक्त प्रोग्राम को। 12 बजे तक ये प्रोग्राम आपके साथ चलेगा। अभी 11:20 हो रहे हैं, प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है। आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, इस नंबर पर डायल करेंगे, मैं आपके साथ गुफ्तगू में शामिल रहूंगा। नंबर है 0423-717-6882। ATV चैनल के रेडियो नेटवर्क शालीमार FM 94.6 से मैं डॉक्टर जलील असलम हफ्ते में 2 दिन में आपके साथ प्रोग्राम में शामिल रहूंगा। हर बुध को रात 10 बजे से 12 बजे तक, हर जुमेरात को रात 10 बजे से 12 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा और मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत को लिए आऊँगा आपके साथ इस प्रोग्राम में। आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे बताए हुए नंबरों पे आप डायल कर सकते हैं, आप अपनी गुफ्तगू कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में वो तमाम बातें होंगी जो कि हमारे मन की दुनिया की बातें हैं, जो वो छुपी हुई बातें जो हम कर नहीं पाते। और ये तमाम बातें और बातों से बातें निकलती चली जाएंगी। मैं लेकर आऊंगा आपके लिए नए नए प्रोग्राम, नई बातें, वो बातें जो आपको काउंसलिंग की तरफ लिए चलती हैं, वो बातें जो आपको एक ट्रैक में लिए चलती हैं, जो आपको आसान लफ्जों में मैं बताऊंगा कि कामयाबी का सफर क्या है। दरियाफ्त एक इंसानी कमाल है। नई चीज की दरियाफ्त किसी आदमी का सबसे बड़ा कारनामा समझा जाता है। तारीख के हर जोर में, हर दौर में ऐसे लोगों को खुसूसी इज्जत और एहतराम हासिल हुआ है जिन्होंने इंसानी इल्म में किसी नई चीज का इजाफा किया हो। दरियाफ्त क्या है? कामयाबी क्या है? कोई शख्स किस तरह एक दरियाफ्त तक पहुंचता है, उसके बारे में एल्बर्ट सेंट ग्योर्गी का एक कॉल कुछ यूं है कि उसको फिजिक्स में, तिबियात में एक नई चीज दरियाफ्त करने पर नोबेल इनाम मिला। इस सिलसिले में उसने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दरियाफ्त यह है कि आदमी उस चीज को देखे जिसको हर एक ने देखा है, मगर इससे वो एक ऐसे ख्याल तक पहुंच जाए जिसको किसी ने नहीं सोचा था। दरियाफ्त की इस तशरीह का एक मशहूर मिसाल न्यूटन का एक वाकया है कि न्यूटन ने सेब के दरख्त से सेब का एक फल नीचे गिरते हुए देखा। फल का दरख्त से गिरना एक इंतहाई आम वाकया है जिसको हर शख्स जानता है और हर शख्स ने उसको देखा है, मगर न्यूटन ने जब इस वाक़े को गहरी नजर से देखा तो उसको इसी मामूली वाक़े में एक गैर मामूली चीज मिल गई, यानी कशिश शकल के कवानीन, लॉज ऑफ ग्रेविटी। वो चीज जिसको हर एक ने देखा था, उसमें उसने वो चीज पाई जो किसी ने नहीं पाया था। यही दरियाफ्त तमाम आला कामयाबियों का खजाना है। वही शख्स बड़ी तरक्की तक पहुंचता है जो कोई नई चीज दरियाफ्त करे। वही कौम दूसरों के मुकाबले में हर बरतर बुलंद मकाम हासिल करती है जो दूसरों के मुकाबले में कोई नई तदबीर इजाद कर सके। जो लोग इस तख्लीकी सलाहियत का सबूत ना दें, वो सिर्फ पिछली सफ में जगह पाते हैं, वो कभी
अगली सफ में जगह पाने वाले नहीं हो सकते। हमारा आज का सफर बढ़ रहा है कामयाबी की मंजिल की तरफ, और यही कामयाबी की टिकट है कि न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखा और वो कहां से कहां पहुंच गया। नबली नाम उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो एक छोटी सी बात को नोट करें और नोट करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। कामयाबी आपके कदम छू रही है, आपको नजर ही नहीं आ रहा। एक किसान सुबह सवेरे उठता है, उठते ही वो हल चलाता है, फिर बीज डालता है, फिर पानी देता है, फिर बारिश, मौसम, सूरज की रोशनी उस तक पहुंचती है। किसान बहुत बड़ा साइंसदान है, वो एक साइंटिस्ट है। उसने जमीन पे बीज डाला और किस तरह फसल होगी, और वो फसल गंदम बनी, और गंदम आटा बना, और आटा रोटी बनी, और रोटी इंसान को जिंदा रखने के लिए एक रोटी ही काफी है। कामयाबी हमारे बहुत करीब है, कामयाबी हमारी जेब में है, कामयाबी का टिकट हमारे पॉकेट में है। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यही तो हम बता रहे हैं आपको। शालीमार एफएम रेडियो 94.6 आपको यही तो बतला रहा है, और आपके लिए नए नए प्रोग्राम लिए रेडियो स्टेशन 94.6 आ रहा है। मेरा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं हफ्ते में 2 दिन, बुध और जुमेरात को, और आप मुझे डायल कर सकते हैं स्टूडियो के नंबर पे अभी इसी वक्त 0423717688 मैं आपके लिए हर वो मोटिवेशनल प्रोग्राम लेकर आऊंगा कि अगर आप मायूस हैं तो क्यों हैं, अगर आप नाकाम हैं तो क्यों हैं, अगर आप ज़हनी बीमार हैं तो क्यों हैं, अगर आप ज़हनी चल नहीं पा रहे तो क्यों हैं, अगर आप डरते हैं तो क्यों है, हवा से डरते हैं तो क्यों है, अंधेरे से डरते हैं तो क्यों है। मैं वो तमाम प्रोग्राम लेकर आऊंगा जिस पर मैं कोशिश करूंगा कि आप में हिम्मत पैदा हो, हौसला पैदा हो, और आप एक आम इंसान की तरह कामयाबी के टिकट को अपनी पॉकेट में डालें और पॉकेट से निकालें, और फिर मैदान खुला है और मैदान में भागते चले जाएं। आप सुन रहे हैं शालीमार रेडियो को, और मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ बिल्कुल लाइव इस प्रोग्राम में शामिल हूं। पीड़ा नूं मैं सीने
اپنی قسمت پہ ہر ایک کو ناز کرنا چاہیے اور ناز کر کے جھومنا چاہیے، اس لیے کہ میری زندگی ہے بندگی سے تیری، زندگی جائے پر نہ جائے بندگی تیری۔ میری قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے کچھ دیر تو، ان اندھیروں کو مٹا کر روشنی دے کچھ دیر تو، پھر وہی تنہائی اور بے بسی رہے گی ساتھ میرے، آ میری باہوں میں سکون دے کچھ دیر تو۔ بھلے پھر لوٹ کر چلے جانا مجھے تڑپانا چھوڑ کر تم، آ میرے دل میں سلگتے انگاروں کو ٹھنڈک دے کچھ دیر تو۔ مہکا دے مجھ کو اپنے رنگین آنچل کی چھاؤں سے، اپنے چاند سے مکھڑے کا دیدار کرا دے کچھ دیر تو، خوشی روٹ سی گئی ہے میرے جیون سے تیرے بعد، خوشی نہ سہی دکھ ہی محسوس کرنے دے کچھ دیر تو، یہ درد مجھے کچھ نہیں کہتے، ایک سکون دیتے ہیں میری روح کو، یہ درد مجھے کچھ نہیں کہتے، ایک سکون دیتے ہیں میری روح کو، میری آنکھوں سے برستا ہے سارا دن، یوں ساون تو برسنے دے کچھ دیر تو۔ آپ سن رہے ہیں مجھ کو شالیمار FM 94.6 سے ATV نیٹ ورک سے۔ اے بزم گیتی کے مکینوں اور میرے ہم سفر ساتھیوں، اے شمانہ سلگھو یوں کہ جل جائیں گے پروانے، اے شمانہ سلگھو یوں کہ چل جائیں گے پروانے، بڑی ظالم ہے تپش تیرے حسن کی۔ من کی دنیا کا یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں رات 10 بجے سے 12 بجے تک، میرا آپ کا ساتھ رہے گا ہر بدھ کو اور جمعرات کو رات 10 بجے سے 12 بجے تک شالیمار FM ریڈیو 94.6 پہ۔ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، ہمارے ٹاپک کے مطابق بات کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے کامیابی کا ٹکٹ۔ کامیابی کا ٹکٹ کہاں ہے، کیسے ہے، کدھر ہے، کس طرح سے ہے؟ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے نمبر 0423717682۔ میرا آپ کے ساتھ ہفتے میں 2 دن رہا کرے گا۔ آپ مجھ کو ہفتے میں 2 دن سنا کریں گے اور میں مختلف موضوعات پر وہ پروگرام لے کر آؤں گا جو کہ آپ کے لیے موٹیویشنل پروگرام ہوں گے، جو کہ آپ سوال سوچتے ہیں میں اس کا جواب دوں گا، جو کہ اپنے من میں اپنی سوچوں میں ایک سوال لیے بیٹھے ہیں جو کہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، اور کیوں نہیں کر سکتے؟ بیکاز انفیریٹی کمپلیکس۔ میں آپ کو جواب دوں گا، آپ کی من میں سے بات نکال کر اور زبان پر لے آؤں گا میں وہ بات، اور آپ غور سے سنیے گا، کیا حقیقت یہی ہے؟ میں آپ کو وہ بات سناؤں گا جو آپ خاموش بیٹھے ہیں نہ جانے کب سے کب تلک، اور میری آواز سننے والے دوستوں، آپ
आवाज की दोष पे, हवाओं की गूंज में प्रोग्राम के साथ साथ अपनी मंजिल को दुरुस्त करते चले जाएंगे। हम लाएंगे वो नए नए अच्छे प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जो प्रोग्राम आपकी मंजिल को बदल देंगे, वो प्रोग्राम जो आपकी लक को बदल देंगे, वो प्रोग्राम जो आपकी काया को पलट देंगे, वो प्रोग्राम जो वाकई खूबसूरत प्रोग्राम होंगे, मोटिवेशनल प्रोग्राम। और इस वक्त टाइम बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है, रात के 11:40 हो रहे हैं। हम उनके सामने रोए भी गस गड़गड़ाए भी, हम उनके सामने रोए भी गड़गड़ाए भी, उन पे हमारी फरियाद का असर हुआ ना जरा भी। आज का प्रोग्राम बड़ी तेजी से अपनी मंजिल से गुजरता चला जा रहा है, बड़ी स्पीड से बढ़ता चला जा रहा है। शामों शहर तेरा इंतजार करती रहती है मेरी चौखट, हर एक दस्तक पे चौंक कर देखती है मेरी चौखट। कभी सोती नहीं, एक पल भी तन्हा होती नहीं, हर पल ही तेरी यादों से महकती रहती है मेरी चौखट। ये मुंतज़िर रहती है तेरे पांव के बोसे को हर दम, तेरी पायल की झुटकार सुनने को, तेरी पायल की झनकार सुनने को बेचैन रहती है मेरी चौखट। शायद तेरे सांसों की सनसनाहट सुन के मदहोश हो जाए, तेरे दिल की धड़कन सुनने को बेताब रहती है मेरी चौखट। तेरे आंचल से हो के हवा उसे चूमे और गले मेरे लगे, न जाने क्यों ये हर पल आस ली रहती है मेरी चौखट। कामयाबी के टिकट में चलते चलते मैं आपको ये बताता चलूं कि बिल कॉस्बी एक स्या फॉर्म अमेरिकी है। वो 1937 में एक गरीब खानदान में पैदा हुआ। इब्तदा में वो बमुश्किल $1000 सालाना कमाता था। आज उसकी सालाना आमदनी कई मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। सफेद फॉर्म अमेरिका में एक स्या फॉर्म शख्स को ये गैर मामूली कामयाबी क्यों कर हासिल हुई? इसका जवाब यह है कि तालीम और दानिशमंदाना जदोजहद के जरिए बिल कॉस्बी फ्लोरिडा के एक स्कूल में 5वें ग्रेड में था। वो स्कूल में अक्सर तमाशे किया करता था और पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। उसकी खातून टीचर नेचुरल ने एक रोज उससे कहा कि अगर तुम जोकर बनना चाहते हो तब भी तुम्हें आला तालीम हासिल करना चाहिए। तालीम के बगैर तुम किसी भी मैदान में तरक्की नहीं कर सकते। बिल कॉस्बी ने इस नसीहत को पकड़ लिया। उसने पढ़ने में मेहनत शुरू कर दी, यहां तक कि उसने एजुकेशन में डॉक्टरेट कर लिया।
اس کے بعد اس نے تفریح پروگراموں میں حصہ لینا شروع کیا. آخرکار اس کو ٹیلی ویژن پروگرام ملنے لگے. آج وہ امریکہ کا مشہور ترین کامیڈین، بڑا مشہور فیمس کامیڈین ہے بل کاسبی. بل کاسبی شو امریکی ٹیلی ویژن کا سب سے زیادہ مہنگا پروگرام ہوتا ہے. دوسرے بہت سے شیف امریکیوں کے برعکس اس نے نسلی امتیاز کی باتیں کرنے سے پرہیز کیا. اس نے اپنی کہانیاں عالمی واقعات کی بنیاد پر بنائی جو تمام لوگوں کے لیے قابل فہم ہو سکے. یہ ہے کامیابی کا ٹکٹ. امریکی عام طور پر بلیک شیف ہم لوگوں کو پسند نہیں کرتے، مگر وہ بل کاسبی کے پروگرام کو نہایت شوق سے اس کو بڑے انجوائے کرتے ہیں. بل کاسبی نے سفید ہم لوگوں کی رعایت کی تو سفید ہم لوگوں نے بھی بل کاسبی کی کو بڑا شوق سے دیکھنا پسند کیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ میں دلچسپی لیں، آپ بھی دوسروں میں دلچسپی لینا شروع کر دیجئے، اور اس کے بعد آپ کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی. بڑا آدمی بننے کے لیے رنگ نسل کا کوئی تعلق نہیں، گورے کالے کا کوئی تعلق نہیں ہے. صرف گفتگو پازیٹیو کرنی ہے، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے، اپنے اندر جو صلاحیت ہے اس کو باہر نکالنا ہے. ہر شخص کوئی نہ کوئی صلاحیت لیے بیٹھا ہے، ہر شخص اپنے اندر ٹیلنٹ لیے بیٹھا ہے. کوئی کمپیوٹر جانتا ہے، کوئی گیمز بنانا جانتا ہے، کوئی جوکر بننا جانتا ہے، کوئی اسٹیج پہ پلے کرنا جانتا ہے، کوئی لکھنا جانتا ہے، کوئی پوئٹری کرنا جانتا ہے. ہر کوئی اپنے اندر ایک ٹیلنٹ لیے بیٹھا ہے، اور کوئی تو بڑی خوبصورت گیت بھی جانتا ہے. اپنے ٹیلنٹ سے کام لیجیے. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے، اور ہم آپ کے لیے یہ پروگرام لائے ہیں آپ کو آگے بڑھانے کے لیے. یہ پروگرام آپ کے لیے موٹیویشنل پروگرام ہے. یہ وہ پروگرام ہے جس میں زندگی کے راز بتائیں گے. اس میں من کی دنیا، آپ کی من کی دنیا کو چھوتے ہوئے ہم گزر جائیں گے. آپ سوچتے ہی رہ جائیں گے، ہم کسی اور منڈے پہ جا کے بیٹھ جائیں گے. پھر نہ کہنا کہ وقت گزر گیا، اور گزرا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا. جو لوگ گزرے وقت پہ شکوہ کرتے ہیں وہ اصل میں اپنی کھوئی ہوئی قسمت پہ شکوہ کرتے ہیں. وقت ہمیشہ سے رہتا ہے، لیکن وقت کو ہاتھ میں ہم نے لینا ہے. ہم نے وقت کو گزرنے نہیں دینا، گزرنے سے پہلے وقت کو ہم نے پکڑ لینا ہے. یہ دن، یہ رات، یہ گرمی، یہ طوفان، یہ بارشیں، یہ سیلاب، یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتے. یہاں لوگ شیشے کے اور شہر پتھر کا. گر کوئی ٹوٹ جائے تو کیا ہے گناہ اس کا. سب پھول جل گئے جلتی ہواؤں سے، اگر کوئی نہیں میرا تو پھر یہ درد ہے کس کا. ہونٹ ہنستے ہیں، آنکھیں روتی ہیں، وہ کھو گیا ہے کیوں، یہ عکس ہے کس کا. آواز کی دنیا کے دوستوں، میں اور آپ رہیں گے رات 12 بجے تک. میں آپ کو وہ کچھ بتاتا چلا جاؤں گا جو آپ آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں. ان باتوں کو سمجھیں. کتنے بڑے واقعات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قسمت کا ٹکٹ کس کے پاس ہے، لک کس کے پاس ہے، اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے اس پر کیا گفتگو ہم نے آپ سے کر ڈالی. خواب آنکھوں میں میری جھلملانے لگے، ہونٹ میرے پھر وہی غزل گنگنانے لگے. تیرے پیار سے ہے میری دنیا ہنسی، تیرے احساس سے ہی گل مہکنے لگے.
خوشی دل میں بسیرا پھر کرنے لگی، ہر طرف گھنگرو سے بچنے لگے. اور تم آ کے دیکھو تو صحیح، ہماری ہنسی رات کو، ہم رات کو پر لگا کے ہوا میں اڑنے لگے. کوئی جانتا بھی نہیں ہم کو اور کوئی سمجھتا بھی نہیں ہم کو. ہم چہرہ چھپا کے آواز کی دوش میں آپ کے کانوں میں سما جانے لگے.
یہ جو پلکوں پہ رمجھم ستاروں کا میرا سا ہے، یہ جو تیرے بنا کوئی اتنا اکیلا سا ہے، زندگی تیری یادوں سے مہکا ہوا شہر ہے، سب محبت کا ایک پہر ہے، سب محبت کا ایک پہر ہے۔ کیسے اڑائے تھے ہم نے تمہیں یاد ہے، جانے کس کے لیے گھر سجائے تھے ہم نے تمہیں یاد ہے، کوئی خوشبو کا جھونکا ادھر آ نکلتا کہیں، کی دنیا کے دوستوں، ہوا کے دوش پہ اور طوفانوں کی لہروں سے گزرتے ہوئے رمجھم رات کے ساتھ باہر ٹھنڈی ہوا شروع ہو چکی ہے، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آپ نے آج ہمارا پروگرام سنا، پروگرام کا ٹاپک تھا کہ ہم نے کیسے بدلنا ہے اپنے آپ کو، ہماری کامیابی کا ٹکٹ کہاں ہے۔ کامیابی کا ٹکٹ ہر شخص کے پاس موجود ہے، اس ٹکٹ کا کیش کیسے کروانا ہے؟ محنت سے، ہمت سے، کم سو کے، کم کھا کے میدان میں نکل جانا ہے اور سیدھا ایک ٹریک پہ اپنی منزل پہ بھاگنا ہے، یہی ہماری کامیابی کا ٹکٹ ہے۔ پروگرام میں آپ سب کی کالز آئیں اور کال بڑی سپیڈ سے بلنک ہوتی رہی، لیکن بہت سے لوگ رہ گئے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ آئندہ آپ کا میرا ساتھ رہا کرے گا، ہفتے میں 2 دن، ہر بدھ کو رات 10 بجے سے 12 بجے تک اور ہر جمعرات کو رات 10 بجے سے 12 بجے تک میرا آپ کا سنگم رہے گا، سنگت رہے گی۔ ہم ایک سنگت میں بیٹھیں گے اور خوب باتیں کریں گے، منزل کی طرف بھاگنے کی، آسمان کو چھو جانے کی، چاند کے آگے بھی مریخ اور مریخ سے بھی آگے بھاگنے کی، سورج کی تپتی ہوئی شعاؤں میں سے گزر کر کیسے ہم نے منزل کو پا لینا ہے۔ ہمارا یہ موٹیویشنل پروگرام چلتا رہے گا آدھی رات کے اس پہر جب تھک ہار کے کوئی اچھی آواز سننے کو جی چاہتا ہے، کوئی اچھی گفتگو سننے کو جی چاہتا ہے، جس میں محبت ہو، پیار ہو، سرور ہو اور آواز اور بات ایسی ہو جو دل میں اتر جائے، تیر نہ مارے، اپنی جگہ بنا لے۔
प्रोग्राम एटीवी चैनल के रेडियो नेटवर्क शालीमार एफएम रेडियो 94.6 पे आप सुनेंगे मेरा प्रोग्राम। तो हफ्ते में 2 दिन आप सुनेंगे, हर बुध और जुमेरात रात 10 से 12 बजे तक। और इस प्रोग्राम इसी तरह और बहुत से प्रोग्राम शालीमार पे अब शुरू हो चुके हैं। बैक टू बैक म्यूजिक से आगे बढ़कर भी आप अच्छी अच्छी आवाजें सुनेंगे, नए लोग आएंगे, नई खूबसूरत आवाजें आपके साथ चलती चली जाएंगी। हर आवाज किसी न किसी के दिल में जरूर उतरती चली जाएगी। मैंने तो रात गुजार ली आज आपके साथ बातें कर करके, और आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। स्टूडियो के इस नंबर पे 0423 717 6882 मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ 2 दिन हफ्ते में आया करूंगा लाहौर स्टूडियो से, बिल्कुल लाइव। आप इस वक्त में बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं। घड़ी की सुई बिल्कुल एग्जैक्ट 12 एट नाइट पे स्टैंड कर गई है। वक्त खत्म हो गया है और आइंदा आपका मेरा सफर अगले वीक दोबारा शुरू होगा। तब तक के लिए खुदा दाने के बाद अल्लाह निगहबान। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।